Yes, my dear students, what we were studying yesterday? We were studying linear inequation, and what we have done? One variable. Now my topic is linear inequation, two variable. Linear inequation, two variable. We have studied linear inequation, one variable. What we have studied in class 10th? We have studied equality in class 10th. What we do there? Like we are having an equation 2x plus 3y is equal to 6. And what we do there? To make a graph of this equation, we make a table, change the x, as there are two variable, two components can be changed. So I am making a small trick here. As in 10th class we have taken 3 cases, now I will take 2 cases. We can take 3 cases also, but I will take only 2 cases, and you also can take 2 cases. So what I will do, what my trick here to solve the equation here, to make the graph, first of all I will use x is equal to 0. I will use x is equal to 0. This is for fix. X is equal to 0. If x is equal to 0, 2 into 0, 0 plus 3y is equal to 6. 2 into 0 plus 3y is equal to 6. This is 0. 3y is equal to 6 and the value of y is 2. Then what will I do? This is the trick here to make the question easy and correct with less time. Y is equal to 0. 2x plus 3 into 0 is equal to 6. 2x is equal to 6. X is equal to 3. Now y is equal to 0, x is equal to 3. This is I am using for equality, what we have studied in class 10th. So this is for equality I am using. Firstly, I will change x is equal to 0 because there are two variables x and y. In next case, I will use y is equal to 0. And why I am doing so? You see, when making the graph, my answer point will be either on x-axis or on y-axis. Like x is equal to 0, y is equal to 2. This will be the point, means this will always be on y-axis and this will always be on x-axis. So there will be no confusion to mark the point. My first point, when x is equal to 0, will always be on y-axis, and when I will use y is equal to 0, my second point will always be on x-axis. Yes. So we will join this line. This is 0, 2, and this is 3, 0. And the equation here is 2x plus 3y is equal to 6. This is the graph of linear equation, two variable for equality. This is for equality. And what is the meaning? अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? हम लोग पढ़ रहे हैं, what we are studying here, हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारे पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं. All the points which lies on this straight line. All the points, I am repeating, all the points which lie on this line 2x plus 3y is equal to, वो सभी पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं, हम वो पढ़ रहे हैं. दिस इज फॉर इक्वलिटी. मतलब यहां पे अगर हम किसी अप्लाई करेंगे कोई और पॉइंट, तो वो इसी के ऊपर आएगा हमारा.
इसी लाइन के ऊपर जो इसको सेटिस्फाई करवाएगा वो इसी लाइन के ऊपर पॉइंट हमारे पास में आएगा। आप टेस्ट करना चाहे ग्राफिकल मेथड से एक ग्राफ के ऊपर आप टेस्ट भी कर सकते हैं। कोई और पॉइंट यहां पे उठा के देख लेते हैं, जैसे x इज इक्वल टू -3 हम मार्क कर लेते हैं, तो इट विल बी 2 इंटू -3 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, -6 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 3y इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 4, 1 2 3। आप जब ग्राफ के ऊपर करेंगे, दिस इज नॉट अ प्रॉपर ग्राफ, जब आप ग्राफ के ऊपर करेंगे यू विल फाइंड दिस पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपका एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आ जाएगा। आप ग्राफ पे बना के देखिएगा, आएगा इसी लाइन के ऊपर, इस लाइन से बाहर नहीं आएगा। ठीक है बेटा, लेकिन अभी हमें क्या पढ़ना है, अभी हमें क्या पढ़ना है, 11th क्लास की अगर मैं बात करता हूं, हमें ये नहीं पढ़ना है। ये इक्वेलिटी, इक्वेलिटी का मतलब जो यहां पे है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। अभी हमें जो पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है, इसी स्टेटमेंट को या तो ग्रेटर के लिए या फिर स्मॉलर के लिए, स्टेटमेंट यही है। 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 6 एंड 2x प्लस 3y लेसर देन 6। all the points which are greater than 6 for this line, all the points which are greater than 6 for this line, and all the points which are less than 6 for this line। सभी पॉइंट्स, वो बहुत सारे पॉइंट जो इस इक्वेशन के लिए ग्रेटर देन 6 होंगे, और वो सारे पॉइंट्स जो इस इक्वेशन के लिए लेसर देन 6 होंगे। मैं अभी एग्जांपल स्टेटमेंट अगर लेता हूं, अभी अभी आपने देखा हमने एक टेबल बनाया था x और y के लिए, x 0 लिया था तो y 2 था हमारे पास, y 0 लिया था तो x 3 था। उसी पॉइंट को मैं यहां पे कैरी कर रहा हूं। x0 y2 x3। अब यहां पे थोड़ा ध्यान देने की बात है, इस इक्वेशन में यहां पे इक्वल टू का साइन मेरे पास नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो वो एक स्ट्रेट लाइन उस तरह से नहीं आएगी मेरे पास में। स्ट्रेट लाइन फिर आएगी स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो कैसे आएगी, कुछ इस तरह से। ये एक डॉटेड लाइन आएगी। अगर इक्वल टू 6 होता तो ये एक स्ट्रेट लाइन थी, और अगर ग्रेटर है या स्मॉलर है लेकिन इक्वल टू का साइन नहीं है तो इस तरह से डॉटेड लाइन आएगी। ठीक है, मतलब ये लाइन हमारी काउंट नहीं हो रही है, दिस लाइन इज नॉट अंडर कंसिडरेशन। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस बात को हमारी। अब हमें वो सभी पॉइंट्स पढ़ने हैं, वो सभी पॉइंट्स जो इस इक्वेशन को ग्रेटर देन 6 बना दे। ठीक है, अब इक्वल टू नहीं है तो मैंने इसलिए ये डॉटेड लाइन लिया। अब वो सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं। अब ये लाइन हम नहीं पढ़ रहे हैं, इस लाइन के बाद कितने पॉइंट्स हैं जो इसको ग्रेटर देन 6 बना रहे हैं वो हम लोगों को पढ़ना है। हम करेंगे क्या, थोड़ा ध्यान देंगे। हम अपना एक फ्रेंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक फ्रेंड बनाएंगे। ठीक है, वो फ्रेंड, जब भी मैं अपने पर्सनल लेवल पे बात करता हूं, मैं अपना फ्रेंड जब बनाता हूं तो पहले मैं उसको टेस्ट करता हूं वो सच है या झूठ है। इफ ही इज ए लायर आई डोंट वर्क विथ हिम। मैं उसको टेस्ट करूंगा, अगर वो झूठा है तो मैं उससे दूर हो जाऊंगा। ये मेरी एक थिंकिंग है
जो आज हमें धोखा दे रहा है वो कल भी हमें धोखा देगा। तो पहले मेरी कोशिश रहती है मैं टेस्ट करूं, अपना एक फ्रेंड बनाऊं, उसके बाद अगर वो सच्चा है तो मैं हमेशा उसके साथ जाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बस वही कंसेप्ट मुझे यहां पे भी यूज करना है। इस क्वेश्चन में भी मैं उसी कंसेप्ट को यूज करूंगा। मैं एक फ्रेंड बनाऊंगा। ठीक है, वो फ्रेंड जो है वो मेरा है ओरिजिन 00। ओरिजिन इज माय फ्रेंड। ओरिजिन इज माय फ्रेंड। लेट ओरिजिन माने 00। ठीक है, ये मेरा फ्रेंड है और ये मैं हूं। आई एम हियर ऑन दिस लाइन एंड दिस इज माय फ्रेंड। ठीक है, अब मैं इसको टेस्ट करूंगा। ये मैं रब कर दे रहा हूं। अब मैं इसको टेस्ट करूंगा। मैं टेस्ट कैसे करूंगा? मैं इस इक्वेशन के अंदर ओरिजिन को पुट करूंगा। मान लीजिए 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 ग्रेटर देन 6। 0 प्लस 0 0 ग्रेटर देन 6। अब आप मुझे बताइए, जो मैंने अपने फ्रेंड को टेस्ट किया, ये मेरा फ्रेंड ट्रू है या फॉल्स है? 0 ग्रेटर देन 6। 0 बड़ा है 6 से। क्या पॉसिबल है ऐसा? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। तो मेरा ये फ्रेंड जो है झूठा है। दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। मेरा फ्रेंड ये एक झूठा फ्रेंड है। तो मैं यहां पे खड़ा हूं, ये मेरा घर है मान लीजिए, और ये मेरा फ्रेंड है। अगर ये मेरा फ्रेंड झूठा है तो मैं उस तरफ जाऊंगा, यानी उसकी डायरेक्शन की तरफ ही नहीं जाऊंगा। मैं अपना रास्ता बदल दूंगा। मैं इस तरह से शेडिंग कर दूंगा। मतलब ये मेरा रास्ता है जहां पे मुझे जाना है, मुझे उसकी तरफ जाना ही नहीं है। मतलब इस तरफ के सारे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इक्वेशन को ग्रेटर देन 6 बना देंगे। जितने भी पॉइंट्स होंगे। आप कोई टेस्ट एग्जांपल लेना चाहें तो ये टेस्ट एग्जांपल ले सकते हो। ये मैंने ले लिया 4 0। अगर मैं यहाँ पे 4 अप्लाई करता हूं, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 0, 4 2 8 ग्रेटर देन 6। ट्रू हो गया ना? ये ट्रू स्टेटमेंट है ना? तो हमें उसी तरफ जाना है जहां पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे, इसमें आप चेक कर लीजिएगा ग्राफ के ऊपर बना के। और ये आपने बनाना भी ग्राफ पे ही है, नोटबुक पे नहीं बनाना है। ये क्वेश्चन सभी ग्राफ पे बनेंगे कि ये सभी पॉइंट्स, उस तरफ के सारे पॉइंट्स जितने भी होंगे वो ग्रेटर देन 6 बना देंगे इस इक्वेशन। कोई और भी आप टेस्ट करके देख सकते हैं। तो जो मेरा फ्रेंड है, अब मैं उसको एक नाम भी दूंगा। ठीक है, ओरिजिन माय फ्रेंड इज रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट या पॉइंट ऑफ रेफरेंस, क्या नाम देंगे इसको? रेफरेंस पॉइंट या पॉइंट ऑफ रेफरेंस। और वो क्या है? 0 0। ठीक है, तो ये मैंने एक इक्वेशन बनाया। अब मैं इसी स्टेटमेंट को यहां पे ले रहा हूं ग्रेटर देन 6 के लिए। उसी तरह से टेबल बनाना है x और y के लिए। x0 y3 y0 x2 x0 y2 था आई थिंक, यस सॉरी, और ये 3। मुझे उसी तरह से ग्राफिंग करनी है। लेकिन अब की बार भी ये डॉटेड लाइन आएगी मेरे पास में, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। लेसर देन 6 देंगे इसको। मैं यहां पे खड़ा हूं और मेरा रेफरेंस पॉइंट, मेरा जो फ्रेंड है वो यहां पे खड़ा है। ठीक है, अब मुझे उसको टेस्ट करना है। तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, मैंने अपने फ्रेंड से x और y को चेंज किया। लेसर देन 6, 0 लेसर देन 6। अब बताइए ये ट्रू है? ट्रू स्टेटमेंट है। अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो मैं अपने फ्रेंड की तरफ जाऊंगा, क्योंकि अब मुझे वो पता है कि वो सच्चा है, मुझे उसके साथ रहना है। ये मेरा अपना घर है, ये मेरा फ्रेंड है, मैं इसकी तरफ चला जाऊंगा। ये इस एरो की इस पॉइंट की तरफ जाऊंगा। तो ये मेरे सारे पॉइंट्स होंगे विच आर मेकिंग द इक्वेशन 2x + 3y लेसर देन 6। आप इसको कैसे भी टेस्ट करेंगे तो रिजल्ट यही आएगा। सपोज मैंने ये टेस्ट कर लिया 0 1। अगर 0 1 टेस्ट करता हूं, 0 1 टेस्ट, या मैं टेस्ट कर रहा हूं, आपको जरूरी नहीं कि आप टेस्ट करें।
2 into 0 plus 3 into 1 lesser than 6. This is 0, this is 3 lesser than 6. My statement is true. So I can say all the number of points downside this straight line making the equation true for 2x plus 3y lesser than 6. I hope you understand the problem. अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं. थैंक यू.